Good afternoon, everyone. Let me share the screen. So, as I discussed in the morning, we will be solving MCQs of linear differential equation today. Yes. So let us brush up first of all. What is this first unit is, for which multiple choice questions we are going to solve over here. So the very first thing we will be discussing. Yes. So I was talking about brushing up the LDA. LDA में हमने क्या क्या पढ़ा था? Complementary function, correct? Then particular integral, and in particular integral, three patterns. What three patterns? First, general method. Second is the shortcut method. So let's just write short. And third is the MOVP, method of variation of parameter. So on these four topics, today we are going to see the MCQ patterns. First question. I hope this is visible, everyone. Yes, ma'am. Okay, let me make it a little large. Yes. So if the roots of M1, M2, M3, Mn, so n distinct roots are there, then auxiliary equation phi of d is equal to 0 are real and distinct. So phi of d के जो auxiliary roots, auxiliary equation के जो roots है m1, m2, m3 and mn are given as real and distinct. Then solution of this differential equation, which is homogeneous one, obviously we are dealing with the differential equation phi of d operated on y is equal to f of x. So जिसके दो solution हम find out कर रहे हैं. One from phi of d operated on y is equal to 0, which is known as CF, and second from phi of d operated on y is equal to f of x, which is known as particular integral. So for phi of d operated on y is equal to 0, our complementary function we are going to get as problem will be asked for 1 marks, and आपको सिर्फ यहाँ पर standard formula लिखना है. So how many roots are there distinct and real? N. तो कितने arbitrary constant होने चाहिए? N. And how will be the solution pattern? Not this one, not this one. Sin and cos वहाँ पर नहीं आएगा because we are not having complex roots, real roots दे के रखा है. So either A and B option will be there. But A contains arbitrary constant C1, C2 and Cn, and C does not contain arbitrary constant. यहाँ पर M1, M2 लिखा है. So correct option will be A. Likewise, अगर आपके roots real है and repeated है, तो solution क्या होगा? ऐसा भी question पूछा जा सकता है. Right? What will be the correct answer for second? All of you try to give the answer or note down the answer or tricks which we are discussing. ये MCQ sheet तो मैं आपको मेल Ma'am, करूँगी. C. Second answer C असल में C. C option. C. Yes, C is correct option. Yes. Third, CSRA roots real है and 3 roots are repeated now, and other roots are distinct. B, ma'am, B. B option. B option will be correct. Yes. Then you are having 2 complex roots for this differential equation. Then its CF is given by, or complete solution of this differential equation is given by.
Now roots are complex. मैम बी असेल ना Ma'am, थर्ड sir, थर्ड D. बी असेल ना बी बी Yes, third. answer D. डी Correct? Yes. थर्डचा मॅम थर्डचा बी असेल ना थर्ड क्वेश्चन Third, बी बी three roots are repeated. C1x square plus C2x plus C3. I'm sorry, मैम पण साइन है it's साइन not B. It's B. Yeah. Fourth is D. Fifth. Again, complex roots. Fourth order differential equation आपको देख के रखा है. Repeated twice, then solution is. So ये roots आपको repeated form में दिए हैं. So solution is B. B. बी मैम yeah. बी B. Yes, that's B. True. Solution of ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, राइट? एंड नाउ चेक, ये तो हो गया आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है. अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है एक्चुअली, एंड द क्वेश्चन विल बी जस्ट टू फाइंड आउट द CF. हम पहले ही कैटेगरी के प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, एंड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा CF. व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ डिफरेंट ऑर्डर्स यू विल बी गिवन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1, 2, 3, 4 मैक्स. अगर 5 या 6 ऑर्डर का दिया भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो सकता है, एंड जस्ट वन ट्रिक वी हैव टू यूज. सो प्रोबेबली दिस ऑप्शन विल डिस्कार्ड. सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3, 4 के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं. चेक आउट द प्रॉब्लम नंबर 6. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का D. CF पूछा है. D option. ऑप्शन विल बी डी. डी मैम डी सो आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो प्रॉब्लम विल नॉट एट ऑल बी हार्ड. अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन उसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन चेंज होता है. सो केयरफुली डील विद द साइन आल्सो, प्लस माइनस साइन आल्सो. ठीक है, मैम इसका 7 से ए 7 से ए A. yeah, yes, that will be A. Correct? Okay, 8. Here we are having A value 2. बहुत बार इस A वैल्यू को हम छोड़ देते हैं. We used to write on this one. So take care कि आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ रहे हो. इसका आंसर C. C. सी मैम सी yes, it's C. Likewise 9, 10th, 11th ये सारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं. सो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो. Okay, so I will not go much in details. 16 का आंसर. मैम विल यू शेयर दिस पीडीएफ या मैं PDF सेंड करने वाली हूँ MCQs की, डोंट वरी. यस, 16 का आंसर. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square plus 1 is equal to 0 and it appears like d square is equal to minus 1. So your roots are D. मैम डी डी मैम डी yes. यहाँ पर एक मैं ट्रिक भी बता के रखती हूँ. आप d-1 ब्रैकेट क्यूब ऑपरेटेड ऑन y is equal to 0 and d cube minus 1 operated on y is equal to 0. Both are having different complementary function. ये दोनों के भी complementary function different है. So बहुत बार इसका और इसका complementary function है स्टूडेंट सिमिलर फॉर्म में लिखते हैं. So don't do that. Carefully try out this and note down this Ma'am, problem. ये शायद 16 MCQs में का- होगा नहीं. 16 का C आएगा या B? D. C. It's plus minus. I'm sorry. Alpha नहीं है ना यहाँ पर. Yes, it's C. सी मैम सी हाँ यस And everyone please note down these two problems also. ये दोनों भी लिख लो. बहुत बार यहाँ पर भी गलती होती है. Just erase this. ये सही नहीं है. Yeah. Next problem. से आप सॉल्व कर सकते हो तो मैं सैम्पल तौर पर कुछ प्रॉब्लम्स लेती हूँ. ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. 19 वाला. This is d square plus d plus 1. Obviously root will be complex. सिर्फ क्या आता है बताओ, and which will be the correct. Obviously A will not be correct, D will not be correct. B या C में से कोई तो भी करेक्ट होगा. C option. C. Yes. And C. C option. Yeah. सी मैम सी It's C. Correct. C will be correct answer.
and take care of the constant which is associated with the differential coefficient also. अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 21 जो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया. नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम व्हाट विल बी आवर करेक्ट CF? CF के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, नो एम्बिग्यूटी इज देयर इन द क्वेश्चन. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, CF फाइंड आउट करो. इतना ही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. मैम सी. सी आंसर सही होगा. Yes, ma'am. C. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's C. Likewise 22, 23, 24 यहाँ पर d क्यूब माइनस 4d इज इक्वल टू 0. सो बहुत बार ये d कैंसल किया जाता है, सो डोंट कैंसल इट आउट. दिस इज d इंटू डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो d इज इक्वल टू 0. दिस इज वन ऑफ द रूट एंड देन d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. सो योर करेक्ट आंसर इज D. बी मैम बी. बी yes. बी सॉरी या डी. करेक्ट. अब यहाँ पर भी देखो सेम क्वेश्चन है, डी क्यूब प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0. जैसे मैंने ऊपर बताया था डी क्यूब माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0. केयरफुली फाइंड आउट ऑल द 3 रूट्स एंड देन टेक द आंसर फॉर 26. ये भी सिमिलर है जैसे हमने ऊपर लिखा था. सो दीज आर द क्यूबिक इक्वेशन यू कैन डील वेरी इफेक्टिवली. कम टू द 31. अब यहाँ पर प्रॉब्लम है d raised to power 4 minus 1 operated on y is equal to 0. प्रॉब्लम इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये फोर्थ ऑर्डर का भी नहीं है वैसे. यू कैन इजीली सॉल्व दैट. सी मैम सी. सॉरी. आई एम सॉरी, व्हिच व्हाट इज आंसर? It was not audible. So your factors are d square minus 1 is equal to 0 and d square plus 1 is equal to 0. So इससे मिलता है प्लस माइनस I and यहाँ से मिलता है प्लस माइनस 1. डी मैम डी स्क्वायर. That's right. Okay. Likewise 32, 33 भी आप खुद करके देख सकते हो. This is very simple. ये भी सिंपल है. कब सिंपल होगा ये? जब आप d square is equal to t पुट अप करोगे तो. एंड ट्राई आउट दिस 2 प्रॉब्लम्स आल्सो. आंसर्स गिवन है तो आपको क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड यहाँ पर भी d raised to power 4 का प्रॉब्लम है 34. सो जैसे मैंने बोला था कि 5 एंड 6 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी अवॉइडेड. लेकिन अगर दिया भी गया लाइक 35 d raised to power 6 y अपॉन dx raised to 6, और 6th ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा? d raised to power 6 plus 6 d raised to power 4 plus 9 d raised to power 2 is equal to 0. so d square बाहर आ जाएगा. d raised to power 4 6d square plus 9 is equal to 0. तो अब यहाँ पर d square is equal to t पुट अप करो इस ब्रैकेट के लिए एंड ये d square is equal to 0. दो सिमिलर रूट देना है. एंड नाउ पुटिंग d square is equal to t, ये सिंप्लीफाई होता है t square plus 6t plus 9 equal to 0. Simplify this first and then replace back d square and take the square root. ठीक है, तो ये भी ट्राई करके देखो. यहाँ पर हमारे पास 6th ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स आर्बिट्री कांस्टेंट 6 आनी चाहिए. एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट करेक्ट आंसर. तो आंसर करेक्ट हो सकता है ए या फिर ए और बी. ए और बी में से कोई आंसर करेक्ट हो सकता है. राइट. ओके, सो दिस इज अबाउट अवर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर 35 की प्रॉब्लम्स है इस शीट में एंड उसमें से भी कुछ 6-7 प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस किए हैं. बट thousands of such problems will get formed as you differ with your order, as you differ with your constant coefficient, your differential equation will be different one. But if core part you are knowing, then solving differential equation to find out its complementary function is very easy task. So ज़्यादा से ज़्यादा
1 या 1.5 मिनट में ये हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इफ यू नो द थिंग्स ऑब्वियसली। So now let us go for the next part. ये शायद CF का यहाँ तक ही है। I'll just open a separate sheet. I'll open the particular integral part. Wait a minute. Particular integral. Yes. थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑब्वियसली, जो 1 मार्क के लिए ही पूछे जाएंगे। द फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला क्या है? सो इट्स 1/5 d ऑपरेटेड ऑन f of x। फर्स्ट करेक्ट आंसर। सो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल में सेकंड प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है जनरल मेथड। तो जनरल मेथड के प्रॉब्लम्स हम पहले सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली द फॉर्मूला इज 1/d minus m, a linear factor is given operated on f of x, 1 linear factor operated on f of x. So यहाँ पर चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जैसे पहला साइन माइनस है, मिडिल साइन माइनस है, मीन्स पहला हमें e raised to power mx पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा, देन e raised to power mx। इज इट करेक्ट? और कुछ बचा है यहाँ पर? ऑप्शन सी। सी मैम। सी मैम, fx पण पाहिजे ना. Option yes, fx पण पाहिजे, करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, नॉट ए। ये दोनों डिस्कार्ड ही कर सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि f of x यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, d 1/d plus m के लिए मैं थ्योरी के क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ ताकि फॉर्मूले हमारे रिवाइज हो जाए। मैम डी. Yes. डी। पहले माइनस देन प्लस, यस। फोर्थ 1/5 of d e raised to power ax, इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला इफ phi of a is not equal to 0, सो केस ऑफ फेलियर वाला है नहीं। डी। डी मैम. डी, ये एट ऑल नहीं होगा क्योंकि केस ऑफ फेलियर नहीं है, राइट? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d minus a ब्रैकेट रेज टू r e raised to power ax। अब हमारा केस ऑफ फेलियर वाला पार्ट r टाइम्स रिपीट हो रहा है, देन डिफरेंशियल पर्टिकुलर इंटीग्रल इज सी सी x raised to r by r. यस यस। ये नहीं होगा क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है नीचे, यहाँ पर x की पावर नहीं है, तो c विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम, 1/5 of d स्क्वायर साइन पर ऑपरेट करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलता है, प्रोवाइडेड दैट ये 0 नहीं है। बी। यस मैम बी. Yes, it's B. Then particular integral 1/5 of d operated on sine of ax plus b. If this is 0, but pi dash of minus a square is not 0. तो वन टाइम केस ऑफ फेलियर है। बी। बी मैम बी बी. बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। x आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर x नहीं है, राइट? ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि साइन के बजाय कॉस आया है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट। पर्टिकुलर इंटीग्रल, eighth question. Rest of all, those who are not answering, please try to recognize the term, try to answer. Yeah, particular integral 1/5 of t square. ए Cos, ऑप्शन। ए मैम. yeah, and same case of failure like sine. बी. डी। It's B. यस मैम, डी ऑप्शन। मैम डी डी. Yes, B. Yes, likewise hyperbolic के लिए, cos sin hyperbolic के लिए सिमिलर वे में सिर्फ माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पर आ जाएगा, दैट डिफरेंस इज देयर। सो आप ये सारे फॉर्मूलेस कर सकते हो। 11, 10, 11 में आपको करती हूँ, 12 पर आते हैं। दिस इज योर केस 4, केस 5 सॉरी, केस 5। केस 4 तो हमारी पॉलिनोमियल की थी, e raised to power x ऑपरेटेड ऑन b, तो ये बाहर आ जाएगा एंड 1/, यस मैम. हाँ,
तो फाइव ऑफ डी में क्या चेंज होगा, ये अगर बाहर आ गया तो C, ma'am. इज इट सी और इज इट ए? ए मैम, ए, डी माइनस ए। पक्का? D. यस डी डी तो नहीं है, C, ma'am. C. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। C. इज इट डी प्लस ए? C, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एनी अदर आंसर? Yes, ma'am. No, ma'am. C option. Yes, so it's C. 13. ये हमारा सिक्स्थ केस है, x ऑपरेटेड ऑन v, सॉरी x इंटू वी, सो पाई ऑफ डी 1/5 ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन x इंटू वी। तो यहाँ पर which one? D. Yeah, it's D. Yes. अब यहाँ से आगे देखो 13 तक ये सारे प्रॉब्लम थ्योरी पर थे। 14 से आगे हमारे सॉल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, एंड एज इफ इट इज जनरल मेथड वी आर डीलिंग विद, तो प्रॉब्लम मस्ट बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। सो अगर 1/5 ऑफ डी लीनियर फैक्टर e raised to x पर अप्लाई होता है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? अब हमें ये जनरल मेथड से सॉल्व करना है। यू नीड एटलीस्ट 2-3 स्टेप्स टू सॉल्व, 2 स्टेप्स एटलीस्ट। तो फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, इट्स 1/pi इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है तो पहले माइनस आएगा e raised to x इंटीग्रेशन e raised to x into dx। सो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 स्टेप्स विल नीडेड। 1, राइटिंग डाउन द फॉर्मूला। सेकंड, टू पुट simplification, hence I'll get e raised to x dx is equal to dt. Put up over here e raised to x, यहाँ पर जाएगा e raised to t, ये e raised to x into dx हो जाएगा dt। so इंटीग्रेशन मिलेगा e raised to t प्लस e raised to x into e raised to t, रिप्लेस करते हैं e raised to x। so हमारा आंसर है ए मैम, ए। ए। करेक्ट? अब यहाँ पर देखो वेरिएशन क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स में। आपका फंक्शन बदल रहा है एंड आपका ये लीनियर फैक्टर बदल रहा है, तो 1 की जगह 2 आ गया, प्लस की जगह माइनस आ सकता है, राइट? फंक्शन बदल सकता है, यही वेरिएशन हो सकता है। और यहाँ पर भी वैरायटी ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। चेक आउट दिस, b+2 फंक्शन टोटली चेंज है, यहाँ पर भी b+1 फंक्शन टोटली चेंज है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स में 19 तक कहीं पर भी D-1 और D-a वाला टाइप नहीं है, तो वो भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, सो ये वाले सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देखो। नाउ दिस पर्टिकुलर पीपीटी इज हैविंग दैट आंसर्स आल्सो, सबसे लास्ट में आंसर्स भी है, तो ये आंसर्स भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है? यस, 20 प्रॉब्लम। Yes, now you have to find out the particular integral with the differential equation. यहाँ पर तो आपको particular integral proper set करके दिया था, यहाँ पर आपको find out करना है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। Now restrictions are not there कि ये जनरल मेथड से ही करना है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी शॉर्टकट मेथड स्टार्ट हो रही है। अगर शॉर्टकट मेथड्स पूरे फॉर्मुलाइजेशन के साथ आपको पता है तो हम यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दैट आइसोलेटेडली सॉल्व अगर आपने किया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1, 1.5 या 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, उससे ज़्यादा वक्त लगना ही नहीं चाहिए। इफ़ आई नो द फॉर्मूलाज, सो बेटर है बिफोर यू गो फॉर द MCQ प्रैक्टिस, prepare one sheet of formulas and then solve the problems. Yeah. So over here, my PI is 1/d² minus 70 plus 6. मैम बी आंसर है 20 बी। Correct. So replace 2. So this is 1/4 minus 14 plus 6 e raised to power 2x as it is. What is the answer? बी मैम, बी। Yeah, that's right. So similar way में अब यहाँ पर देखो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का phi of d चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। सो इजीली आप ये अप्लाई कर सकते हो।
Now this is like e raised to power 3x plus 1 means e raised to power 0x. So 1/5 of d means आपका d square minus 9 जो है वो इस पर ऑपरेट कर, वेरी इजी टास्क है. दो स्टेप्स हर प्रॉब्लम में हमें सॉल्व करने के लिए लग जाएंगे एंड वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. ये भी आपका एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम है. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म. यहाँ तक 26 सारे एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम सॉल्व कर रहे हैं. 27 से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन टर्म्स, साइन या कॉस टर्म्स स्टार्ट हो जाएगी. साइन ऑफ 2x, साइन x, साइन x, साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ ax जो इस वे में ऑपरेट होगी. तो यहाँ पर शायद 30 वाला सॉल्व करते हैं हम. पी आई इज इक्वल टू 1/. वैसे आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो. आई एम जस्ट सॉल्विंग ऑन सैम्पल बेसिस. तो बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है कि हाँ मैम ये सॉल्व करके बताओ, तो हम वो अभी सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं 30 वाला सॉल्व कर रही हूँ. दिस इज d क्यूब प्लस 9d नाउ ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x. सो दिस इज लाइक 1/. एक d को छोड़ दिया, दूसरे d स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा -9 प्लस 9d. सो दिस इज योर केस ऑफ फेल्योर, राइट. सो दिस इज COF. करना क्या है COF है तो इस फॉर्मूला के साथ कंटिन्यू करते हैं. x ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. दिस इज 3d स्क्वायर प्लस 9 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x. सो x अपॉन, अब इस d स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ a स्क्वायर से. सो -3 का स्क्वायर इट्स 9 प्लस 9 साइन ऑफ 3x. सो -27 प्लस 9 विल रिमेन -18 साइन ऑफ 3x. सो इस प्रॉब्लम का आंसर है इट्स x अपॉन 18 माइनस 18. बी मैम, बी. It's B. So problem multiple choice questions will not be much difficult. Here, addition of two terms we are having. One more thing, probably like this sin x into cos of 2x. This kind of term which is in product may be given. इसका फॉर्मूला हमने देखा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. सो ये भी सॉल्व करके देखो. साइन एंड कॉस का ही है. साइन कॉस ऑफ mx 34 ऑनवर्ड्स. कॉस हाइपरबोलिक की टर्म आ गई. वेरिएशन क्या होगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी. हाइपरबोलिक में भी सेम, कॉस हाइपरबोलिक की जगह साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा. फंक्शंस तो आपका 5 ऑफ d तो आपका चेंज होता रहेगा हर एक प्रॉब्लम के लिए. तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख सकते हैं. यही देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक का. दिस इज 1/d क्यूब माइनस 4d ऑपरेटेड ऑन 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x. तो ये केस ऑफ फेलियर आ रही है. दिस इज केस ऑफ फेलियर. तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे, दो तो बाहर लेते हैं, 2 बाहर लेते हैं. x अपॉन 3d स्क्वायर माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x. एंड नाउ रिप्लेस d स्क्वायर बाय a स्क्वायर. अब यहाँ पर हाइपरबोलिक है इसलिए a स्क्वायर से रिप्लेस करना है. सो दिस इज 2x अपॉन a स्क्वायर इज 4, 13, 3 into 4 12 माइनस 8. यहाँ पर cos हाइपरबोलिक, सो x बाय 4 into cos hyperbolic of 2x. I'm sorry. C option will be correct, right? Then 36 onwards आपकी फर्दर केस शॉर्टकट मेथड की स्टार्ट हो जाएगी, which is polynomial. इसमें क्या वेरिएशंस आ सकते हैं? नॉट मच. पॉलिनोमियल आपकी डिफरेंट डिग्रीज की यहाँ पर आ जाएगी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में 5d आपका डिफर होता जाएगा हर टाइम. बट ओवर हियर ऑल्सो एक्चुअली शॉर्टकट मेथड में सबसे लेंथी वाली मेथड है ना, ये मेथड है पॉलिनोमियल की. एंड जब ये प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज में दिए जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वक्त हमें ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए लग जाएगा. सो दीज आर द लेंथी एमसीक्यूज. तो आपको अगर सिंप्लीफिकेशन पता नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करो इस टाइप के एमसीक्यूज की. केस 4 जहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है. ओके, सो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आई सॉल्व दिस 38.
कौन सा सॉल्व करना है आप बताओ. Anyone will, we can solve. मैम 39. 39. ओके, सो 39 सॉल्व करते हैं. मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ थोड़ा सा. जस्ट इरेज दिस. Yes. So this is 1 upon phi of d operated on f of x. Here gives us 1 upon d square minus 1 operated on x cube. Yes, तो हमें लोएस्ट डिग्री टर्म डिनोमिनेटर से बाहर निकालनी है, वो है -1. तो -1 को बाहर लिया, ये हो गया 1 upon 1 minus d square operated on x cube. But this is like 1 minus x bracket raised to -1 operated on x cube. Now expand this. 1 minus x का expansion क्या है? 1 plus x plus x square plus x cube and so on operated on x cube. Right? So now Yes, ma'am. now operate with every term minus. यहाँ पर आ जाएगा 1 into x cube. x cube का second derivative 6x. 6x. x cube का fourth derivative 0. and rest of all derivatives will be 0. So my answer will be minus x cube minus 6x. यहाँ पे 39 कर लेना, minus x cube minus 6x. Answer D. Right? Next question 40 same है, 41 similar form में है. 42 से आपका नया टेक्स्ट शुरू हो रहा है. e raised to power ax into v. तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल लेवल पर रिड्यूस होते हैं, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. हाउ? इट्स 1 upon d square minus 4d plus 4 operated on e raised to power 2x plus into x raised to power 4. Yes. Now e raised to power 2x को बाहर लो. And here I have to replace d by d plus 1, d plus 2 या d minus 2. D plus 2. So d plus 2 का square plus यहाँ पर minus है, minus 4d plus 2 and this is plus 4 operated on x raised to power 4 now. So this is e raised to power 2x 1 upon खोल दो bracket d square plus 4d plus 4 minus 4d minus 8 plus 4 operated on x raised to power 4. ठीक है, तो ये minus 8 plus 4 will get 0, minus 4d plus 4d will get 0 and I'll get e raised to power 2x 1 upon d square operated on x raised to power 4. So this is double integration of x raised to power 4 gives us e raised to power 2x x raised to power 5 x raised to power 6 upon 5 into 6 30. So answer is e raised to power 2x into x raised to power 6 into 30 upon 30. Sorry. C. Correct. I hope you are reading along with me. Yes, ma'am. Yes. So problem number 43, 44, 45, 46, 47 are of similar type. Problem number 48 is of exponential form once again. Oh, exponential form का है and आपको PF नहीं पूछा है, PI नहीं पूछा है, solution पूछा है. Means आपको क्या find out करना है? CF also and PI also. Don't forget to check out the options while writing down your solution or final answer. Correct? तो यहाँ पर आपको CF भी फाइंड आउट करना है एंड PI भी करना है, दोनों को मिला के आपको सॉल्यूशन टिक करना है. सो डू दैट. एंड CF एंड PI फाइंड आउट करने के ऑल टुगेदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी अगर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं तो इसकी जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन की तो वो 2 से ज्यादा नहीं होगी. एंड द मार्क्स टू सी द डिफिकल्टी लेवल इज नॉट बेस्ड ऑन द मार्क. ये डिफिकल्टी लेवल सॉल्विंग
जितना टाइम लगता है उस पर भी डिपेंड होती है, नॉट ओनली ऑन मार्क्स. सो 2 मार्क्स के लिए अगर मैं कुछ लेंदी प्रॉब्लम दूँ तो दैट विल नॉट बी ऑल्सो जस्टिफाइंग दैट पार्ट. सो ये प्रॉब्लम देखो अब दोनों भी, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉट मोर देन दैट. So that's it about from this particular slide about the PI, general method as well as the shortcut method. Then come to the next part, which is method of variation of parameter. We'll discuss that problem also over here. We have 10 minutes with us now. Our lecture is till 1:10. Yes, ma'am. Yes. Yeah. So we could find out that this part is not with the, in our syllabus. Let me just check it once. CFPI, SD, SSD, we generates on this one. MOP is not there, I guess. MOP की प्रॉब्लम नहीं है. Wait a minute. Okay. We have couple of problems over here on MOP. See the problem number 31 from this PPT. Complementary function of differential equation A naught d2y by dx square plus a1 d2y by dx plus a2y is equal to f of x. So second order differential equation you have been given here. And इसका complementary function दे के रखा है c1y1 plus c2y2. Then by method of variation of parameter, particular integral is this one, ये भी दे के रखा है. आपको सिर्फ क्या करना है, u फाइंड आउट करना है. इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सही है ये पूछा है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड. तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. ऑन सिमिलर नोट 32 क्वेश्चन जो दिया है वो री ऑप्टेन करने के लिए दिया है. सो टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर 31 एंड 32. 31 D. 31 का D. D, करेक्ट. D, ma'am. एंड 32 C. Ma'am B. नहीं, सी नहीं होगा ना. वी फाइंड आउट करते वक्त हमें y1 यूज करना है. सी वी फाइंड आउट करते वक्त y1 यूज करना है एंड यू फाइंड आउट करते वक्त y2 यूज करना है. डिनोमिनेटर इज योर Wronskian, y1 y2 dash and minus y2 y1 dash. See the problem now 33 वाला प्रॉब्लम देखो कि आपको इसका सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो दे के रखा है यहाँ पे. पर्टिकुलर इंटीग्रल ये एज्यूम किया है जिसमें v की वैल्यू एक्सपेक्टेड है फाइंड आउट करना. सो v का सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो. इंटीग्रेशन y1 क्या है आपका cos, f of x क्या है
tan and what is Wronskian? ये आ जाएगा y cos x sin x, ये y को इसका डेरिवेटिव माइनस sin x and this is cos of x. So cos square minus minus plus sin square. So Wronskian की वैल्यू क्या है 1 divided by 1. So v क्या मिलेगा? This is sin upon cos. Cos will get cancelled. Integration of sin x dx. So v की वैल्यू क्या है? Minus cos of x dx. So B is the correct answer. यहाँ पर भी वेरिएशन बन सकता है, बट प्रॉब्लम की जो टाइप है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइप्स है. 1 थ्योरी जहाँ पर फॉर्मूला पूछा जाएगा. सेकंड यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा. एंड थर्ड वी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा. बियॉन्ड दैट none of the other problem will get formed on the method of variation of parameter. Getting my point, everyone? So ये भी प्रॉब्लम देखो 34. Yes, ma'am. Method of variation of parameter. Ma'am, 2 marks असेल नाही प्रॉब्लेम. Sorry, ऐकायला आलं मला. 2 marks असेल. Yes, 2 marks. Problems are of 2 marks. Theory के जो questions होंगे फॉर्मूला बेस्ड वो 1 मार्क के लिए होंगे एंड 2 मार्क के लिए होंगे वो सॉल्विंग बेस्ड सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको. So 34, 35 these problems are to find out the M of VP. So in सब problems के लिए though it is asked to find out U only, find out V as well, so that आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी. यहाँ पर V पूछा है तो U भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो. यहाँ पर 36 is also of M of VP. 37 मत सॉल्व करो. ये है Cauchy's homogeneous linear differential equation पर. ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है. So from this PPT, if I'm going to share with you, just solve the 4 types: CF, PI shortcut method, PI general method, PI MOVP. Rest of problems please leave that are not there in your syllabus. Is that okay everyone? और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, शायद ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में लिया था. एक क्वेश्चन है roots of auxiliary equation are 0, 1, 0, I minus I. Then order of differential equation is ABCD. मैं 3 ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दे रही हूँ आपको. सपोज दिए हैं ऑप्शंस, तो कौन सा करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे आंसर बताओ डायरेक्टली. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस. 4. सॉरी 4. नो, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर चाहिए. ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स दे के रखे. थ्री मैम 3. सॉरी 3. 3 yes मैम 3. नहीं 7. 5. ये भी नहीं है. 7 मैम. 7. दिस इज करेक्ट आंसर. भाई आपके जितने भी रूट्स है उतने नंबर ऑफ उतनी आपके ऑर्डर होगी. अब यहाँ पर रूट्स दिया है 0 0 रिपीटेड 2 टाइम्स, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर 2 आएगी हमारी 1. So 3 ऑर्डर हो गई I and minus I. क्या होनी चाहिए ऑर्डर? Is it 7? yes मैम 7 Yes ma'am. कॉन्जुगेट असेल ना I चा कॉन्जुगेट. नाही रे नाही. 7 पण नाही ऑर्डर. मग काय ऑर्डर? 5 ना. It's 5. Yes, ma'am. 5. करेक्ट, क्योंकि यही इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. इफ आई वुड हैव गिवन दिस इज 2i minus 2i देन ऑर्डर 7 हो सकती थी. करेक्ट. गॉट माय पॉइंट एवरीवन? yes मैम. Yes. So carefully read out the question, carefully read out the things given and then answer the question. Okay, next question ऐसा भी हो सकता है. If d raised to power 60 operated on y is equal to 0, then complementary function. शायद इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया था.
जितना मुझे याद है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, so your complementary function is. एक ही बात का क्वेश्चन है. ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की? 60. 60. Yes, ma'am. सो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होने चाहिए? 60. एंड Yes, व्हाट इज द And 60, व्हाट इज द रूट? 0. डिफरेंशियल 0. Yes, ma'am. 0 है, राइट? सो दिस इज C1 plus C2 X raised to x 59. plus and so on plus C. यहाँ पे क्या आ जाएगा? C60. 60. C60 आ जाएगा. X X raised to raised to power. 59. 59. करेक्ट. 59. सो ये है आपका आंसर. सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपके नंबर ऑफ रूट्स पर या नेचर ऑफ रूट्स पर भी डिपेंड हो सकते हैं. एंड दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड जस्ट फॉर 1 मार्क. आर नॉट मच ट्रिकी, लेकिन आपको कोर पार्ट पता है तो आप इसका भी आंसर आराम से दे पाओगे. ठीक है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs based on the linear differential equation what we studied in unit 1. Actually, LD is beyond that also, but that part is not there in our syllabus, so we'll skip that. Any other question? Anybody wish to ask? Else we can stop here and MCQ practice on Fourier transform we will be doing in next year, tomorrow. Okay. Shall I stop? Ma'am, can you please provide those MCQs today only? Yes, today I'll post that. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. I'll just take your attendance by that time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roll number 6 is not there. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38 is not there. 9, 40, 1, 2, 41, 42%. 43, 44, 45 present, 46%, 47%, 48%, 50. Okay, 51, 52, 53, 54, 55 present, 56, 57.